So we'll be looking at a few exemplar problems of the chapter polynomials, and here we will begin with the problems that are in the exemplar book of class 9th, and after we finish we'll be heading to the same chapter and the problems that deal with the concepts pertaining to class 10th. Alright, and this is the first of the many recorded sessions that we are going to have, and we'll be having some doubt clearing sessions after a fixed number of the recorded sessions, which will be decided after a discussion with all of you. Thank you. So, as we all know, that in polynomials, the simplest and first type of question that we can get deals with the identification of polynomials, right? And since we are talking about identification of polynomials, you get a specific type of question in your book if you have done the exercise. It find out if it is a polynomial, right? So one question is x square by 2 minus 2 by x square. So is it a polynomial? Now, how do you find? So our approach will involve first simplifying this problem, which we do as follows. We have x square by 2 minus 2 x to the power 2 whole to the power minus 1. Since we have inverse of x square over here, that basically translates to x square by 2 minus 2 x to the power minus 2. Alright, so here you can see we have got 2 powers of x in this expression, right? One of the powers is 2, which is a whole number, alright. But another is minus 2. It is a negative integer and is not a whole number. Since ये whole number नहीं है, this expression is not a polynomial. Alright. You can also be given a question like this one, where it says, say the example is root 2x plus 1. This is the expression. So is it a polynomial? So how do you tackle this question? Again, you go for simplification of the process. हम पहले थोड़ा simplify करते हैं. We'll begin with simplification of this term because 1 is simple as it is. हम इसको कैसे simplify कर सकते हैं? 1 is root 2, another is root x plus 1. So इसमें power of x क्या हुआ? 1 by 2. And since the power of x is 1 by 2, what is 1 by 2? Is 1 by 2 whole number?
तुम्हारा जो भी पावर होता है, assume that the power of x, right, power of x in any expression is n. मतलब तुम लोग को एक्सप्रेशन में लिख दिया है x to the power n. जैसे ऊपर तुम्हें क्या दिया है, x to the power 1/2, राइट. सो कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया है where you given x to the power n, and when you given x to the power n, you need to check is n a whole number. This is the only question that you need to ask yourself. ये एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना है कि मैं x का जो भी पावर देख रहा हूँ क्या ये होल नंबर है, इज इट ए होल नंबर ना. उसके बाद तुम्हें दो ही जवाब मिल सकते हैं, ठीक है. या तो वो होल नंबर है या फिर वो होल नंबर नहीं है. और अगर है तो फिर इट इज़ ए पोलिनोमियल, और अगर नहीं है फिर इट्स नॉट ए पोलिनोमियल. ऑलराइट, that is how it goes so far. Now you will be getting a number of questions where you're asked to find which one of the questions or which one of the expressions given is a polynomial, or which expression that is given is a polynomial. ठीक है. So try to do that. You will get it in the exemplar book of class 9th, the mathematics exemplar. ठीक है. So second type question that you can find, find the degree of given polynomial. Alright. Now if you are asked to find the degree of the given polynomial, first you need to know that this degree, what is this degree, degree क्या है ना. So let us see what is degree. डिग्री का सीन ये है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन. सो क्वेश्चन तुम्हें कैसे देगा, अगेन यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस लाइक you will be given a term. ठीक है. So suppose it gives you the example that it has got a term 4x to the power 4 plus 3x square plus x. So you observe this term. Once you are observing this term, it will ask you क्या है डिग्री. ठीक है. What is the degree? And when you're talking कि डिग्री क्या है, you need to find out the degree. And then the next part comes, how do we find out the degree? Again look at the highest power. x की यहाँ पे तुमको 3 ही पावर्स मिलेंगे. You'll get 3 powers of x.
कौन से, एक ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, राइट, तीनों के तीन एक्स के पावर है। एंड डिग्री इज द पावर दैट इज मैक्सिमम, वहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है तुम उसको डिग्री कहते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ का पावर है 4, यहाँ का पावर है 2 और यहाँ का पावर है 1। सो द मैक्सिमम पावर इज 4। सो इसका आंसर क्या है, degree is equals to 4. That is how this program goes, that is how this problem goes. You will be given a number of problems. For example, तुम्हारा एक पॉलिनोमियल डिग्री जो भी होगा, it should be a whole number, because otherwise this won't be a polynomial, right? So तुम्हारा जो भी पावर ऑफ x होगा, एंड नोट इन दिस टर्म x क्या है, व्हाट इज x? x इज द वेरिएबल, एंड आई होप वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए कि 4x² में x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है। 4 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, 4 का वैल्यू 4 ही रहेगा, x की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो। सो कुछ प्रॉब्लम्स में x की जगह आपको और भी कुछ टर्म्स मिल सकते हैं, जैसे कि y, जैसे कि z, एंड दिस ऑल विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल्स। सो वहाँ पे तुमको वेरिएबल का पावर देखना है, ठीक है, वट एवर टर्म्स यू आर गेटिंग, वहाँ पे तुमको वेरिएबल का पावर चेक करना है। जैसे एज यू कैन सी इन द अबव एक्सप्रेशन 4x⁴ + 3x² + x, वहाँ पे x वेरिएबल है, ऑल राइट। सो यू हैव टू लुक एट द पावर ऑफ वेरिएबल बिफोर डिसाइडिंग दैट दिस एक्सप्रेशन हैज़ अ डिग्री ऑफ दिस, वट एवर द डिग्री टर्न्स आउट टू बी, ऑल राइट। एंड अनदर थिंग, another type of questions that you can get, those questions will ask you like 2x⁵ plus 0x⁴ plus x⁴ plus whatever, right? So I'm giving this as a general example. Notice this term, right? इस टर्म का वैल्यू जो क्या हो जाता है, इस टर्म का वैल्यू एक्चुअली 0 निकलता है। द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज एक्चुअली 0, इस टर्म का और कुछ वैल्यू नहीं है। सो यू डू नॉट काउंट दिस। अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दे देता है, मानो ऐसा क्वेश्चन दे दिया 0x⁴ plus x⁴ प्लस मानो x² equals to 5, whatever, मान लो any sort of example. So यहाँ पे x⁴ will not mean that 4 is the degree, because effectively this term is 0. बात ये है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ 0 × x⁴ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या एक्सप्रेशन में? द एक्सप्रेशन इज गोना बी द सेम, बिकॉज इवन दो x⁴ इज देयर, रिजल्टेंट क्या है, x⁴ का जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज अगेन 0. सो कितने भी 0 नंबर्स के टर्म ऐड कर लो, 1 + 0 + 0 + 0, these things don't actually matter, they don't mean anything. इन लोग का कोई वैल्यू नहीं है, doesn't mean, it's 0, simple. एंड इसका रिजल्टेंट क्या होता है, द रिजल्टेंट इज स्टिल 1, no changes. So addition of 0 here along with x⁴, x⁴100, whatever it is, it does not change the equation, doesn't do anything to change the degree of the equation. So यहाँ पे ऐसे टर्म्स में तुम्हें
डिग्री को 7 या 4 नहीं लेना, यहाँ पे डिग्री होगा x⁻3, यानी कि डिग्री तुम्हारा बनेगा 3. ऑलराइट, आई एम इरेजिंग द अननेसेसरी पार्ट. ठीक है. ठीक है. Now let us move to another example which involves something called as zero polynomial. Alright, so take a minute to recall. Have you come across this term zero polynomial? कुछ आइडिया है क्या? अगर नहीं है बता देता हूँ. ऑलराइट, सो whenever you have a polynomial which has a not defined a degree, it is a zero polynomial. Alright, whenever there is a polynomial जिसका डिग्री डिफाइंड ना हो, that is called a zero degree polynomial. And the tragic part is what you saw above, right? जो तुम लोगों ने ऊपर देखा कि तुमको दिया गया 0 into x⁻7 plus 0 into x⁻4 plus 0 into x⁻2. ऐसे कितने भी टर्म्स ऐड कर लो, इवेंचुअली the result is 0. So such a polynomial px जिसका वैल्यू 0 हो and it is such a combination of 0 and the various powers of x or various powers of the variable, right? Because x is the variable. ये याद रखो, x पे फोकस करना ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल पे फोकस करना ज़रूरी है. कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पे तुमको x का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया हुआ हो. मानो तुमको मेंशन कर दिया गया है x = 2 एंड एक एक्सप्रेशन दिया है x + y = 5. तो यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x कांस्टेंट है, यहाँ पे बस y वेरिएबल है जो कि तुम्हें निकालना है, मतलब जो तुम्हें पता नहीं है. ठीक है. x + y + 5y. यहाँ पे वेरिएबल है y, 5 कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है बिकॉज x का वैल्यू मेंशनड है. एज लॉन्ग एज इट इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इस टर्म का वैल्यू यही होना चाहिए, सो दैट टर्म इज़ अ कांस्टेंट. सो एनी टर्म वेयर द पॉलिनोमियल और एनी एक्सप्रेशन वेयर द टर्म्स are products of various powers of variable and 0, and that ultimately gives us 0 as a result, is called a zero polynomial, right? So zero polynomial तुम अभी 1 मिनट 2 मिनट पहले पढ़ चुके हो, एंड उससे पहले भी जब क्लास होता तब तो पढ़ ही चुके हो. ठीक है. So next type of problems that we can have are the problems that deal with the degrees, right? They're done. Next is you will be given a polynomial.
right? You will be given an expression. Say the expression can be anything. एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 equals to 0. Consider this to be an example. एंड यहाँ पे तुमको वो बोलेगा कि दिस इक्वेशन इज px, दिस एक्सप्रेशन इज px. ठीक है, लेट दिस एक्सप्रेशन बी px. 0 इक्वलाइज किया था हमने पहले, बट लेट दिस इक्वेशन जस्ट बी px एंड नॉट इक्वल टू 0 फॉर नाउ. ठीक है, प्लस 7. So in this term, if they ask you p 0, वहाँ पे तुम्हारा क्या काम क्या है, x की जगह 0 लिख दो, स्क्वायर करो, फिर 4 लिखो, x की जगह 0 लिख दो, फिर 7 लिखो, और फिर क्या निकला, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 7 है. सो p0 का वैल्यू क्या निकला, 7 निकला, राइट. अगर तुम्हें बोले फाइंड p2, राइट, तुम्हें क्या करना है, x को 2 डालना है, यू हैव टू पुट x एज 2. फिर क्या करोगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7, right, that is 12 plus 7 equals to 19, right. So this is another type of problems that you can be given. You will be given an expression. यहाँ पे क्या होगा, given क्या चीज़ रहेगा, given होगा तुम्हें expression, most likely तुम्हें एक्सप्रेशन दिया होगा और x का कुछ एक वैल्यू दिया होगा, कोई भी एक वैल्यू 1 2 कुछ भी. एक्सप्रेशन को जनरली हम लोग px बोलते हैं. वो तुम्हें px दे देगा और बोलेगा कि p5 निकालो या p4 निकालो. यानी कि एसेंशियली इसका मतलब ये है p5 रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विथ, or rather value of the polynomial if we take x equals to 5. तो कुछ भी दे सकता है तुम्हें, वो दे देगा pn. ठीक है, तो pn में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x को लेना पड़ेगा n. यू टेक x एज n. जहाँ जहाँ इक्वेशन में, जहाँ जहाँ वो एक्सप्रेशन में x लिखा है वहाँ n डाल दो. जब बोलेगा p10, जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन में x लिखा है वहाँ 10 डाल दो, फिर वो इक्वेशन का वैल्यू बस ऐसे ही निकल आएगा. यहाँ पे एक एरर कॉमनली लोग क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम्स इस तरह से मिलेंगे कि एक्स स्क्वायर, और रादर शुरू करते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू px. नाउ तुमको बोल देगा तुम p-1 निकालो. ठीक है, तुम लोग तो तेज़ हो, तुम लोग बहुत तेज़ हो, मोस्ट बच्चे सही करेंगे. ठीक है,
अब कुछ बच्चे होंगे जो लिखेंगे ये, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है तुम लोग को भी पता है, मुझे भी पता है, बट आई एम श्योर कि अगर इसको क्लास में फ़्लो के साथ इंस्टेंटली कराया जाता तुम में से बस 1 या 2 बच्चे ही बताते कि सर क्या गलत है, पॉइंट आउट करते। वो गलत ये है, तुम लोग को हमेशा ये चीज़ को अटेंटिव रहना पड़ेगा कि -1n जो होता है, ठीक है, उसके 2 वैल्यूज़ आ सकते हैं। एक वैल्यू में क्या होगा, एक वैल्यू उसके लिए आएगा जब n इक्वल टू इवन होता है, तो इसका वैल्यू आएगा 1। अब दूसरा वैल्यू उसके लिए आता है जब n इक्वल्स टू ऑड, जिसके लिए वैल्यू आएगा -1, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n और इवन को ये छोड़ दो, ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर विल राइट -1 टू द पावर 2n, क्योंकि 2n हमेशा इवन रहेगा, ठीक है। -1 टू द पावर 2n इज 1, और दूसरा रहेगा -1 टू द पावर 2n प्लस 1, इट विल बी -1। जब -1 का जब ऑड पावर आता है तब रिजल्ट माइनस आता है। एंड जैसे कि यू पीपल ऑलरेडी नो, 2n प्लस 1 में ये जो है इवन है, एंड कोई भी इवन नंबर के साथ 1 ऐड कर दो वो और बन जाता है, इवन प्लस 1 और ये सब लोग को पता है, बट फिर भी आई मेंशन सो दैट यू डू नॉट हैव एनी डाउट्स। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना। सो टेक ए मिनट टू नोट इट डाउन। आई होप यू आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग जो कराया जा रहा है अलॉन्ग विद द क्लास। तो तुमको ऐसे ही प्रॉब्लम्स सॉल्व करने आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट यू गिवन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द क्वेश्चन सेज तुम्हें px का वैल्यू दे दिया है, राइट। px इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है। तो वो तुम्हें बोलेगा, और आधा वो तुम्हें बोला है px प्लस p माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है, ठीक है। सो हाउ डू वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सिंपल है, एज आई मेंशन बिफोर हैंड, x की जगह ये तो एज इट इज़ px का वैल्यू है, हमको दे रखा है यहाँ पे x प्लस 5। तो पहले हम इसको नोट डाउन करते हैं, x प्लस 5। p माइनस एक्स का कैसे निकलेगा? p माइनस एक्स का निकालने के लिए हमें इस x की जगह माइनस एक्स डालना पड़ेगा। डाल दें माइनस एक्स? डाल देते हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 5 डाल दिया, x की जगह माइनस एक्स डाला, इक्वल्स टू, कर लोगे इतना, ये कर दूँ, x माइनस एक्स तो आ ही गया, फिर प्लस 5, राइट। आंसर क्या है? ये दोनों कैंसल्ड है, 0 बन गया, 5 प्लस 5 हो गया 10। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग के लिए डिफ़िकल्ट है, बट ऑलवेज बी अटेंटिव कि तुम एक्सप्रेशंस में जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हो उसको पहले ब्रैकेट में रख के डालो। साइन सिंबल्स जो भी है, पॉजिटिव है पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है नेगेटिव रखो,
उसके बाद एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में x-5 दिया होता या फिर -x-5 दिया होता, वैसा एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। यू विल गिवन द क्वेश्चन, px इक्वल्स टू -3x + 5। अब यहाँ पे क्या होगा, वो तुम्हें बोला है कि p -2x प्लस p 3x का वैल्यू निकालो, राइट। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड आई विल गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई वांट यू टू डू इट ऑल करेक्टली। फिर भी कुछ गलती हो देन आई विल सॉर्ट इट आउट, ऑलराइट। So this is me, Anshuman Mishra, signing off. If you have any doubts, you can always find me on my number. You can text. Thank you. Have a good evening.